spot this private jet, and whichever one of these 100 pilots wins this video keeps it. For the first challenge, the pilots all split up into 3 teams. No way I'm going home. To be the first team to pull their 40,000-pound plane across the finish line. 3, 2, 1, go! And whichever one of these 3 teams moves on will also have to withstand the force of these massive jet engines and win an endurance challenge so intense. We shut down an entire city for 24 hours. But first, we need to see which one of these 3 teams crosses the finish line first. It's not gonna keep going! Keep going! Almost there! Can't see my headline brute force in this! They're pulling ahead! They're going so fast! You don't win until the plane crosses the finish line. Oh, we had our winner! You guys did it! That's our jet! I think it's only going this. While 2/3 of the pilots were just eliminated, One of these pilots is winning a private jet! these pilots are 4 challenges away from winning this $2.4 million private jet. Welcome to game number 2, Jet Spinner! Start the engine! This ain't good. Here we go. The plane is getting started. Inject the fuel, baby. The private jet you're competing for is ramping up its thrusters to produce 60-mile-per-hour winds. The jet will then begin to rotate in a circle in an attempt to blow each of you off your platform. Oh, this is insane. Did not come this far to go home. I'm so scared right now. Good luck, everybody! Here it comes. Oh, we have our first elimination, 1 down! I want that jet! No way I'm gonna let this jet take me out. I might pee myself. Never in my life did I think being a pilot I'd be worried about a jet blast. Bye-bye! Oh, man, it's coming. All right, let's see if he's home! 26, hold on! He's doing it! Hold on! You did it! You're moving on! That's a great technique! Quickly, the pilots saw what to do, and more importantly, what not to do, by watching the others go before them. Okay, so the wing strategy is sideways, not like this. The people that are staying on are like this. They're locked in! Even though the pilots were picking up on the strategy, some still weren't strong enough to hold on. Another one! All I'm saying is if number 40 goes down, I'm going down. We built the exact same. That wasn't nothing to me. I got it. It's actually really ironic because what you're competing for is literally what's eliminating you. They are dropping one by one. There's another one! And despite having perfect technique, this pilot, who literally played in the NFL, couldn't stay up. The King Russell couldn't do it! I was gonna say he's a brick wall, but clearly not. And by the end of this challenge, You got it! All right, well, never mind. That was really fast. the jet managed to eliminate a total of 15 pilots. Some of the hardest competitors that I was the most worried about just got away. Congratulations to the 19 of you for moving on! It's going to take more than this jet blasting me in the face to knock me off. I feel bad for some of the people here, but it's got to get done. This is the beginning of something I great. was expecting it to just kind of blow me a little bit. It just hit me in the chest like a sail, and I couldn't catch it from there. Let's So. head over to the next game. And in this video, we took over the city of Riyadh, Saudi Arabia, where there are still 3 more challenges these pilots will have to compete in to win the multi-million-dollar jet. For challenge 3, we're going 10,000 feet in the air. Follow me, pilot. I need you all to pick a captain. Samuel volunteer in the beginning. I say Samuel. Samuel is gonna pick one of you to go 1v1 against. Andre! Samuel, out of these 19 briefcases, Pick a number. number 8, 10 of these briefcases say jump, meaning you skydive and move on to the next game. The rest are elimination. All right, Samuel is going to look inside the briefcase. And Andre is going to decide steal or no steal. What's in the briefcase? Jump. You saying let's jump. Get the jump. Okay, Andre, steal or no steal? You know what? I believe you. Jimmy, I'm taking the briefcase. If it says jump, you're moving on. Yeah! Let's
next game is all the way on the ground, so you have to jump. 3, 2, 1. One down and only 9 jumps remain to the next game. At first, people were honest, which meant that the people deciding whether to steal had all the power. It's a jump. Enjoy your side eye. He told me. It's eliminate. But listen, I really want to say. No, I'm not taking. Why are you guys telling the truth? And because he also refused to lie, I'll not say anything. Vander gave away 2 jumps before being eliminated himself. Why would you not lie? Pilot's got integrity. There are 6 eliminations and 6 jumps to the next challenge left. However, Brett came up with a strategy after he watched one of our previous videos. Since the YouTuber's video, I had this plan. This is what I would do in this situation. Do you trust this man? I do. It's eliminate. Promise? You promised that in here is eliminate. I can put my trust in you, so I'm gonna let you have it. Oh! He got him! He got him! It turns out that in this game, lying pays off. And now that one person has lied, it's become a lot harder for the pilots to trust each other. Says jump. No, I think you're lying to me. I'm gonna let you keep it. Did you read Andrew? No! It says jump! Sometimes it pays to tell the truth. Because the remaining spots were slowly dwindling away, the pilots had to decide what is their integrity worth. I want to be the good person in aviation and not tell lies, not rob people for their money, and I'm a person of integrity. I believe that. I would like for you to steal it. All right. So Well, this is an eliminate. no steal. Oh! Wait, the story works! That doesn't sound like good integrity. Whoa! Colby, what are you saying there? I'm just saying. Let's go! I can't believe that someone claimed to have so much integrity and it was all just a farce and that he lied right through his teeth. There's only 3 jumps, but 6 eliminates left. And the odds only kept getting worse. It says jump. I'll take it. Oh, it says jump! I'm not gonna steal it. No steal. Oh my gosh! Bring him out of parachute, and to you, gentlemen, I'm gonna state the obvious. Only one of you is now moving on. Because out of the 6 remaining briefcases, only 1 jump remains. What is it? I'm gonna let you pick. all right. I'll steal. Oh, Eliminate. 4 eliminations left, but only 1 jump remains. All right, what'd you see? Jump. You're saying this is the last jump? The last one. Great, can I trust you? I'm telling the truth, Jimmy. Steal or no steal? No steal. No steal. All right. Holy crap. If Eddie's telling the truth, everyone else will be eliminated. He was telling the truth. He was telling you the truth. Now that all 10 jumps have been taken, it's time to see why these contestants were jumping out of a cargo plane. That's because this next challenge is taking place in one of the most unlikely locations you'd ever find a jet, the middle of the biggest freeway of Riyadh, the biggest city of Saudi Arabia. So the entire city can watch it in real time. Gentlemen, raise a hand. Put that hand on the jet. Last one of you to take your hand off this $2 million jet keeps it. The game has officially started. If you raise your hand, you're out. You want to raise it? Nah. How long you last? We'll see. I'll be the last. हाथ हटाया तो बाहर हाथ हटाना है नहीं मैं ठीक हूँ आप कब तक टिकोगे देखते अभी तो स्टार्ट हुआ है मैं बेहोश हो जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं हटाऊंगा बेहोश हो जाने तक भी ये चलने वाला है घंटों तक या कई दिन है ना हो सकता है इस वीडियो को बनाने का फैसला करने से पहले सिटी में जेट ट्रेन घुमाना लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल था पर हमने कई महीने लगा दिए ये रूट डिसाइड करने में क्योंकि प्लेन बड़ी मुश्किल से लाइट पोल से गुजर रहा था हे ड्राइवर थोड़ा संभल कर चलो ये प्लेन इतना चौड़ा है कि हमें लिटरली स्पीड के साइंस को टर्न करना पड़ रहा है ओके आगे रहो जरा देखो तो सही कितनी छोटी जगह है मजा आ रहा है और जैसे ही हमने प्लेन के लिए बात क्लियर किया सारा शहर हमें देख रहा था हेलो कैसे हैं आप लोग
तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हाल है दोस्त? मिस्टर बीस्ट, आप क्या कर रहे हैं? इनमें से कोई एक ही है जेट जीतने वाला है। देखो कितने सारे लोग हमें शूट कर रहे हैं। हजारों लोग हमारा वीडियो बनाकर टिकटॉक पर लाखों व्यूज बटोर रहे थे, जिससे हमने ऑफिशियली रियाद पर कब्जा कर लिया है। मैं इसे जीतने वाला हूँ। वीडियो शेयर कर लेना। कैसा लग रहा है जब रोड पर से कार्स गुजर रही हैं और तुम यहाँ प्लेन के साथ हो? ये बढ़िया है, फ्री का एंटरटेनमेंट मिल रहा है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है। कैसे हो आप लोग? ये सारा दिन चलता रहता और किसी एक के आउट होने से पहले हमने पूरा शहर घूम के निकाल लिया होता। इसीलिए इस चैलेंज को मुश्किल बनाना जरूरी हो गया था। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, सब पायलट्स प्लेन के इस साइड आ जाओ। हम इसे मुश्किल बनाएंगे, ट्रक को रोक दो। आप सबको बिना हाथ हटाए प्लेन के नीचे आना है और एक स्पॉट चूज करना है, क्योंकि सब प्लेन के विंग के साथ चलेंगे। मैंने शूज नहीं पहनकर गलती की, लेकिन कम से कम सॉक्स तो है। चलो दूसरे पर गिरना मत। वैसे स्पीड कैसी है? मैं मैराथन दौड़ता था दोस्त, इसलिए पैदल चलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो थोड़ा आसान लग रहा है। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। शायद इसे एक लेवल और बढ़ाना चाहिए। हम इसे स्प्रिंट तक ले जा सकते हैं जिन्हें मुझे कुछ नहीं होगा। चलो थोड़ा और तेज चलते हैं। 1 to 10 के बीच में आप लोग कितने थक गए हैं? वो सब इसलिए शांत है क्योंकि वो ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हैं। उन्हें 5 मिनट हो गए दौड़ते हुए। अब उनके लिए मुश्किल हो रही है क्योंकि मुझे उनके हाथ एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? अमेजिंग। लग रहा है जैसे पीछे की रोड स्ट्रगल कर रही है। मेरा हाथ फिसल गया। कोई तो आउट हो गया। स्पीड कम करो। मैच प्लेन की स्पीड कम करो। मुझे यकीन नहीं होता। क्या हुआ? मेरा हाथ स्लिप हो गया। तुम बॉयज को कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हार मत मानना। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप सभी डिजर्व करते हैं। मुझे ग्रैंड के लिए बुरा लग रहा है यार। मैं नहीं चाहता कोई भी आउट हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये गेम है। मैं शायद ही टाई पहनकर इतने दौड़ा हूँ, मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। सऊदी अरेबिया की गर्मी में दौड़ना वाकई भारी पड़ रहा था, इसीलिए कुछ पायलट्स ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। लोग हमेशा सोचते हैं ये कपड़े कैसे बदलते हैं, ये जरूर फेक वीडियो है। तो देखो इस तरह वो अपनी उंगलियां स्लीव से निकाल रहे हैं। लाओ ये मैं ले लेता हूँ। हम ये नहीं दिखाते तो लोग कमेंट में कहते हैं फेक फेक फेक। वीडियो फेक नहीं है, ये रियल है गाइस, रियल। पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरे पास एक ऑफर है। मैच वो लेकर आओ। ये बहुत भारी है। ओह माय गॉड। मिस्ट्री ब्रीफ केसेस। नहीं वैसा नहीं है। इन ब्रीफ केसेस के अंदर है पूरे $50,000। ओह माय गॉड। उसके लिए जो भी अगला हाथ हटाएगा। मेरा हो गया, चलता हूँ। ओके ये मान गया। ये रहे तुम्हारे $50,000। ये काफी है बेबी। मेरी फैमिली है, करियर है, ये बंदे आगे बहुत कुछ पालेंगे, वो डिजर्व करते हैं। मैं उन्हें मौका दूंगा। बाय बॉयज, आई लव यू। एक और कम हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाओ। कैसे हो? हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा चैनल देखते हो? हाँ, मैं अपना थीम पार्क दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अभी अभी खोला है। हमने एक पूरा थीम पार्क खोला है जहाँ आप हमारे सबसे पॉपुलर वीडियो से इंस्पायर चैलेंजेस में कम्पीट कर सकते हैं और आप सबसे बड़े इनाम जीतने का मौका पा सकते हैं जो किसी और थीम पार्क में नहीं मिलेगा। अगर आप में दम है, चेक करना बीचलैंड, रियाद, सऊदी अरेबिया। मजे करना। चलो वापस शूटिंग पर चलते हैं। मैं इनसे टकराना नहीं चाहता। तो स्पीड के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर मेजॉरिटी ने कहा कि और तेज चाहिए तो हम स्पीड बढ़ा देंगे। स्पीड कौन बढ़ाना चाहता है? सिर्फ एक? हाँ, इसकी स्पीड बढ़ाओ। हाँ बढ़ाओ। मुझे मेजॉरिटी चाहिए। कम ऑन गाइस, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। ऑलराइट, मुझे मंजूर है। स्पीड बढ़ाओ। ओके, अब 3 हो गए। वो हाथ छोड़ने वाले हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। तुमने एकदम सही कहा दोस्त। गाइस हम जितना स्लो रहेंगे उतना ज्यादा आपको पैदल चलना होगा। दौड़ सकते हो? दौड़ते हैं। दौड़ सकते हो? मैं नहीं दौड़ रहा। मैं ठीक हूँ। साउथ तुम कर सकते हो यार। हम ओके, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। हम नहीं दौड़ेंगे। अगर हम दौड़े तो कोई ना कोई तो बाहर हो जाएगा। कम से कम इससे बाकी की तो एनर्जी बचेगी। जब जानते हो कि नहीं टूटोगे तो दौड़ो ना। कोई है जो छोड़ कर चला टूटने वाले हो ब्रो। नहीं, अगर मैं टूटने वाला हूँ तो दौड़ूंगा नहीं। कम ऑन गाइस, चलो दौड़ते हैं। अगर दौड़ेंगे तो जल्दी निपट जाएगा। गाइस ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ठीक है? मुझे नहीं लगता मुझ में अब कुछ बाकी है। जहाँ एक बंदा वीक है। चलता है यार। डूड लिटरली अब नहीं होगा मुझसे। मतलब कोशिश तो करो। मेरा हाथ अब थोड़ा और। हाँ। अरे कोशिश करनी होगी मुझे। मैं दौड़ूंगा। इच्छा तो नहीं पर कहना पड़ रहा है। हम तेज जा सकते हैं।
ओके, मेजॉरिटी हो गई। स्पीड बढ़ा दो। हम बढ़ा रहे हैं। कीप रनिंग गाइस, कीप रनिंग। मैं फिसल गया। क्या हो गया? मेरा हाथ फिसल गया यार। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए? हाँ। एंड्रू के एलिमिनेशन के बाद 7 पायलट्स रह गए थे, लेकिन इस पॉइंट तक हम अच्छा खासा रियाद शहर घूम चुके थे। हमने सबको आराम करने के लिए ट्रेनर पर बिठाया और उनका हाथ जेट पर ही रखने को कहा जब तक हम अगली स्पॉट पर नहीं पहुंच जाते चैलेंज खत्म करने के लिए। गाइस, इसे देखकर कुछ याद आया? हाँ, लास्ट टाइम जब तुम यहाँ थे तो तुम्हारे साथ 100 पायलट्स थे जो प्लेन खींच रहे थे। तुम लोग बहुत जिद्दी हो। अब क्योंकि आप लोग प्लेन से हाथ नहीं हटाना चाहते, मैं आपके लिए एक बटन लाया हूँ। जब भी इसे दबाओगे तो एक चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा जिससे चीजें और मुश्किल हो जाएंगी और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बाहर ना हो जाए। क्या लगता है दोस्तों? कोई भी बटन दबा सकता है, ये सिंपल है। ओह, तुमने इनसे पूछा भी नहीं? भाई मैं बटन दबाना चाहता था, मैं चाहता हूँ ये जल्दी खत्म हो। चैलेंज नंबर 1, अब आप बैठ नहीं सकते। क्या कहा? और अब हाथ की जगह सिर्फ एक उंगली इस्तेमाल करेंगे। ये उंगली मुझे जेट दिलाएगी। ये अंगूठा इस जेट पर अब ऐसे ही रहेगा जब तक मैं चाहूँ तब तक। अंगूठा छोटा और मजबूत है तो ये अच्छा है। मैं चाहता हूँ अब सब लोग एक उंगली पर स्विच हो जाएं। बाकी सभी उंगलियां और बॉडी पार्ट्स प्लेन से दूर हटा दें। तुम में से कोई भी उंगली हटा देता है और बाहर हो जाता है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। तो तुम हटा दो ना। गुड जॉब मैन, तुम कर सकते हैं। गुड जॉब। भाई 13, 14, 15 घंटे हो चुके हैं, सूरज भी उगने वाला है। हम सबको तुम पे बहुत नाज होगा, बस तुम अपनी उंगली हटा दो। तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं ब्रो। देख भगवान कसम, मैं तेरी उंगली हटा दूंगा। मुझे वो बटन दबाना ही होगा। क्यों? गुस्सा मत दिलाओ यार, सबको बाहर करना होगा। ऑलराइट, अब हम एक रेड स्क्वायर लगा रहे हैं जिसके अंदर आपकी उंगली होनी चाहिए। अगर आपने उसे टच किया तो एलिमिनेट हो जाओगे। ये बहुत बोरिंग है जेनी। तुम ब्रो, मैंने तो अभी स्क्वायर चिपकाया। ठीक है, चलेगा। क्या सच में? सॉरी बॉयज। सभी रूल्स के साथ आपको एक पैर पर भी खड़ा रहना होगा। इसमें पक्का 1-2 विकेट गिरेगी। अपने पैर उठाओ। अब सब लोग एक पैर पे खड़े हैं और अगर उस पैर ने जमीन को टच किया तो एलिमिनेट हो जाएंगे। पर ये अब तक के सबसे जिद्दी कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें मैंने देखा है, कोई भी हार नहीं मान रहा क्योंकि ये $24 लाख का जेट इनकी जिंदगी बदल सकता है। ये पायलट्स अपने एम्बिशन के लिए लड़ रहे हैं। मुझे वो जेट चाहिए अपना चार्टर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये लड़ रहे हैं अपनी फैमिली ओह माय गॉड, ये मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है और उनकी लाइफ लॉन्ग ड्रीम्स के लिए। मैं और मेरी वाइफ सिर्फ IVF से ही हमें बेबी हो सकता है। ये हमारी मदद करेगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हारा हाथ कांप रहा है? मेरा हाथ कांप रहा कब है। तक होल्ड कर सकते हो? जब तक जान में जान है। आखिरी दम तक? आखिरी दम तक। क्या बात? जब तक बेहोश ना हो जाऊं। मुझे पता नहीं सैमुअल को एहसास है या नहीं, लेकिन उसका पैर जमीन को छूने ही वाला है। लगता है ब्रेड का भी ध्यान है। रुको, क्या उसने जमीन को टच किया? ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, ऐसा लगता है कि आप में से किसी एक ने जमीन को टच कर लिया है। वो बेहोश हो गया, वो बेहोश हो गया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बैठ सकता हूँ। ठीक हो ना? किसी एक को तो आउट होना ही था। बाकी सब ओरिजिनल रूल्स पर वापस आ जाइए। बस अपना हाथ मत हटाना, पर आराम कर सकते हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और मैं गिर गया। हाँ, मैं हार गया। ऐसा मत कहो, तुम तो एक वॉरियर हो। वो रहा हमारा जेट। मुझे लगा था तुम आगे तक जाओगे। मुझे भी लगा था। मैंने शायद बॉबी को भी आउट किया। मेरे ख्याल से उससे बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं उस पर गिरा। हाँ, घबराओ मत, हम रिव्यू करेंगे। ये रही क्लिप, आप देख सकते हैं। उसने तुम्हारी रस्सी खींची जिससे तुम्हारी उंगली हिल गई। तो बॉबी अब भी गेम में है, लेकिन लिटरली उसके बेहोश होने से पहले किसी और का भी पैर जमीन से टकराया। आप में से एक और एलिमिनेट हुआ है। क्या लगता है किसका पैर है ये? वो मेरा है। तुम बाहर होते हो। और ब्रेट, भले ही सैमुअल का पैर पहले गिरा, तुमने अपनी उंगली पहले ही उठा दी थी, तो तुम्हारा एलिमिनेशन वैलिड है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़ी मदद मिलेगी। आगे जो भी बाहर होगा उसे मिलेंगे $10,000। तुम लोग इस प्लेन से बहुत देर से चिपके हो। ये ले लो, हम तुम्हें इस तरह खाली हाथ नहीं जाने देंगे। थैंक यू, थैंक यू। अब सिर्फ 5 रह गए हैं, कोई एक ये करोड़ों का जेट अपने साथ ले जाएगा। और अब शायद अच्छा टाइम है ये बताने का कि जब सिर्फ 3 लोग बाकी रहेंगे तो एक फन ट्विस्ट है। फिक्र मत करो, 3 बचने पर बताऊंगा। मैं बुरी तरह थक गया हूँ क्योंकि 22 घंटों से जगा हुआ हूँ। मैं सोना चाहता हूँ।
लेकिन सो नहीं सकता। भाई ब्रेट ने खुद को सचमुच बेहोश होने तक खींचा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो अलग ही माइंडसेट है। अब अगर मुझे उस चैलेंज के लिए रेडी होना है तो थोड़ी नींद की जरूरत है। मेरा गोल है कि सबको पहले सोने दो, क्योंकि नींद एक खतरनाक चीज है। एक बार कोई सो गया तो फिर कंट्रोल खो जाता है, समझो जैसे बेहोश हो गए हो। मैं इसे दरअसल एक पिलो की तरह यूज कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, मुझे परेशानी हो रही है। मैं अब हिम्मत हार रहा हूँ। जरा सोचो, मैं करोड़ों का प्लेन गवा बैठूंगा अगर मैं सो गया तो। जैसा कि मैंने कहा, नींद लेना एक बुरे सपने की तरह होगा। ओह, गलती कर दी। अच्छा सुनो, जब तुम जागे शायद मैंने तुम्हारा हाथ देखा। मुझे जाकर फुटेज देखना होगा। समझ गया। यो बॉबी, क्या हुआ? मैं शायद घर जा रहा हूँ भाई। क्या? शायद मैंने अपना हाथ उठा लिया था। ओह, तुमने ऐसा क्यों किया यार? थकान की यही तो बात है। कोई नहीं चाहेगा कि हम उसकी पकड़ में आए, पर जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हे बॉबी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। बॉब, क्या हुआ? मुझे पता भी नहीं। मैं नहीं जानता। मुझे पता ही नहीं यार। मुझे पता नहीं। मुझे नहीं पता। क्या तुमने अपना हाथ उठाया? मैं नहीं जानता। मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। ओह गॉड, तुमने एक सेकंड के लिए अपना फोकस खोया, बस वही हुआ। Congratulations, आप लोग टॉप 3 में हैं। आप सबको याद होगा मैंने कहा था कि टॉप 3 में एक ट्विस्ट होगा। अब हम 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके पास वो 1 घंटा है जिसमें ये पता लगाना है कि ये प्लेन कौन जीतेगा। और उस 1 घंटे के खत्म होने पर अगर एक से ज्यादा लोगों का इस प्लेन पर हाथ हुआ तो ये किसी को नहीं मिलेगा। समझदारी से काम करना है। ध्यान रहे कि आप किसी भी पर्सन या गेम को चूज कर सकते हो और चाहे तो कोई झूठ भी बोल सकता है और जज से अपना हाथ नहीं हटा सकता। ओके जेंटलमैन, टाइमर शुरू करो। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन करोड़पति बनना चाहिए और कौन खाली हाथ घर जाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये जेट कौन ज्यादा डिजर्व करता है? हम सभी डिजर्व करते हैं। फर्स्ट प्लेस। ओह, लेट्स गो। मैं जंप करूंगा। ये इजी नहीं था। कोई नहीं कह सकता ये इजी था। मैं क्विट नहीं करने वाला। नहीं, मेरा हाथ कांप पैर भी रहा कांप है। रहे हैं। कब तक होल्ड कर सकते हो? जब तक बेहोश न हो जाऊं। हमें काम करते हैं, एक चैलेंज थ्रो करते हैं। जो भी वो चैलेंज जीतेगा वही विनर होगा। पर ऐसा कौन सा गेम है जो तीनों के लिए फेयर हो? हम तीनों के लिए, राइट। चलो कुछ जंप्स करते हैं और किसी को पूछते हैं कि किसने हाईएस्ट जंप किया। तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से सोच रहे हो। एक्सक्यूज मी, ऐसे जैसे ये बस मेरी सहूलियत है और तुम्हारी नहीं। तुमने हमसे बिना पूछे चूज किया। मुझे यकीन है कि हम ऐसा गेम ढूंढ लेंगे कि तीनों एग्री हो जाए। मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी फिजिकल कर पाऊंगा। मैं थक गया। तो चलो क्विज खेलते हैं। वो फिजिकल नहीं। मैं चाहूंगा कि जिमी के पास लड़कियों से उनका फोन नंबर मांगने में जी घबराता है, कहीं बेइज्जती हो जाए या भाव न दे, इस बात का डर लगा रहता है। अगर हाँ तो कनेक्टो पर आओ, जहाँ खूब 3 केसेस हों जिसमें से एक जेट निकले। तो तुम प्रपोज कर रहे हो कि मैं 3 बॉक्सेस लाऊं, इनमें से किसी एक में जेट है या टिकट है और बाकी 2 खाली है और आप लोग रैंडमली चूज करोगे। किसी का कुछ नहीं होने वाला। अगर हम कोई स्किल बेस्ड काम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अटके रहेंगे। मेरे लिए अगर लक पर बेस्ड है तो भी चलेगा। तुम एक ग्रोन मैन हो और चाहते हो कि कोई दूसरा ग्रोन मैन तुम्हें गिफ्ट दे। तुम शायद खैरात चाहते हो। तुम्हें भी तो जेट मिल रहा है ना। मैं ये जेट कमा कर ले जाना चाहता हूँ, ना कि मुझे किस्मत के भरोसे लकी ड्रॉ में वैसे मिले। मैं बता दूं, मुझे स्किल बेस्ड नहीं चाहिए। हम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो निकलता जा रहा है। हम बता चुके हैं हमें क्या चाहिए। तुम उससे सहमत नहीं हो रहे हो। मैं ऐसा कोई भी गेम नहीं खेलूंगा जो इस पे डिपेंड करता है कि मैं। तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है। तुमने हाँ, बताया मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इनकी बहस खत्म नहीं हो रही। इस तरह से मुझे नहीं लगता कोई भी जज जीत पाएगा। मैं एक बात बताता हूँ। ये आदमी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। उसने बताया कि उसे बच्चे चाहिए। वो इसके लिए पिछले 5 साल से ट्राई कर रहा है। तो अगर तुम प्लेन जीते तो इसे बेचकर अपनी फैमिली स्टार्ट करोगे? हाँ वही, यस। ओह माय गॉड, अमेजिंग। ये मैंने अपनी बेटियों के लिए किया। अपनी बेटियों के लिए किया। मुझे वो जेट चाहिए अपना चार्टर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वही मेरा गोल है। चलो करते हैं। ओह रुको, बात आगे बढ़ रही है। बोलो क्या करना है? आप लोग चाहते हैं मैं 3 ब्रीफ केसेस लाऊं?
आई एम सॉरी, किस्मत के भरोसे नहीं रहना। ओह माय गॉड। तो तुम्हारा मन बदल गया? मुझे मुकाबला पसंद है ब्रो। अब तक आधा टाइम जा चुका है, ऐसे ही करते रहोगे तो कोई नहीं जीतने वाला। ये लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, बस ब्रीफ केसेस है, शायद 2 खाली है और 1 में गोल्डन टिकट हो सकता है। ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, यूज करना है या नहीं। क्यों ना आप लोग सेपरेट हो जाए, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, फिर वापस एक साथ आ जाना। तुम लोग कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? लगता है जैसे तुम किसी दीवार से बात कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, हम सब ने बहुत कुछ देखा है। चलो कम्पीट करते हैं। आई एम श्योर 100% अगर कोई गेम खेले और वो हार गया तो वो हाथ नहीं हटाएगा। मुझे नहीं लगता वो हाथ हटाएगा। अगर हारा तो? अगर हारा तो मतलब उसने स्काई डाइविंग चैलेंज में झूठ बोला था। मैं एविएशन फील्ड में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता और मैं एक ईमानदार इंसान। मैं यकीन करता हूँ इसमें स्टे है। नो स्टील। हम आए और यहाँ तक पहुँचने में हमने बहुत मेहनत की और अभी हम हारेंगे। तो क्विज खेलते हैं ना? वो चाहता है क्विज खेलें। ए, तुम्हें ऊपर वो प्लेन दिख रहा है? अगर तुम सब मिलकर कुछ करो तो 15 मिनट में किसी एक का ये हो जाएगा। अगर बहस करना बंद करोगे और एग्री करोगे तो किसी एक को ये जेट मिल जाएगा। जिस रफ्तार से तुम लोग जा रहे हो, तुम में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। टाइम जा रहा है। ऑलराइट, ये ब्रीफ केस मेरा है। साउथ, अपना ब्रीफ केस उठाओ, ये मेरा है। साउथ, ये तुम्हारा ब्रीफ केस है? ये लोग कंप्लीट नहीं करना चाहते, इन्हें बस गिफ्ट में ये प्लेन चाहिए। मुझे यकीन नहीं। मैं एक बात और कहूँगा, अगर तुम केस खोलो और अगर वो खाली निकले तो अपना हाथ हटा लोगे? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो हमने रियाद में शूट किया है क्रेजी है, फिर जो आने वाला है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। बीच गेम सीजन 2 स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्मार्ट चैलेंजेस और भी बड़े हैं, ट्विस्ट और भी ज्यादा क्रेजी है और पैसा भी जबरदस्त। हमने लिटरली आखिरी 2 एपिसोड यही रियाद में शूट किए हैं और कोई 50 लाख या शायद $1 करोड़ लेकर चला गया। आपको बस देखना है और पता लगाना है। बीच गेम सीजन 2 7 जनवरी को आ रहा है प्राइम वीडियो पर। क्या तुम अपना हाथ हटाओगे? हाँ। क्या तुम अपना हाथ हटाओगे? हाँ, मैं हटा दूंगा। क्या तुम अपना केस खोलना चाहोगे? मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये मेरा आखिरी पल है। तुम्हें ये बोलते हुए कैसा लगता है कि मुझे जीतने दो? उससे तुम्हें क्या मतलब? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे परवाह नहीं है। जेंटलमैन, मैं बस इसे फ्रेम में लाना चाहता हूँ। 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम है और जिस तरह आप बढ़ रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं जीतने वाला। कैसा रहेगा अगर वो हमें एयरप्लेन्स की लिस्ट दिखाए और हम गेस करें कि कौन सा प्लेन है? जिद छोड़ दो। लगभग 2 मिनट रह गए हैं। सीरियसली किसी को जेट नहीं मिलने वाला। तो तुम्हें नहीं लगता कि एयरप्लेन्स के नाम बताना फेयर होगा? जवाब, चलो हाथ मिलाते हैं, कम ऑन, वरना खाली हाथ जाना पड़ेगा। ऑलराइट, मैं तुम्हारी स्टोरी जानता हूँ। अगर तुम जीते तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा बल्कि खुशी होगी। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी। 1 2 3। उसे मिल गया, उसे गोल्डन टिकट मिल गया। उसे मिल उसे गया। वाकई में मिल गया। तुम्हें मिल गया लक। हे, वैसे तो इन्हें अपना हाथ हटाने की जरूरत नहीं है, पर ये इन पर डिपेंड करता है। तुम्हारे और जेट के बीच में बस इनका फैसला खड़ा है। ये इतने लंबे समय से थे, क्या ये अपना हाथ हटाएंगे? कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं, जल्दी कोई डिसीजन लो। जाने देंगे। हाँ। ओह माय गॉड, इन्होंने मार दिया, इन्होंने मार दिया। तुम ये प्राइवेट जेट जीत गए। सॉरी मैन। अब तुम हाथ हटा सकते हो, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा हो गया है। ब्रांड न्यू जेट के लिए कांग्रेचुलेशंस। हम इन दोनों को $20,000 देने वाले हैं। तुम इसके हकदार हो। ये मेरा ब्रांड न्यू जेट है, लेट्स गो। ये इसी का जेट है। हे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो।